जय से पहले खुद को जज करें. So if you can't appreciate what you have at your home, you can't appreciate what's there outside. Basically cumulative every single chota part of Rajasthan at a single place. फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिमन्यु और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल नोमैडिक अभिमन्यु पर. जी हाँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक नई और अनोखी जगह आ चुका हूं जयपुर की, जिस जगह का नाम है किशन बाग. किशन बाग द सैंड ड्यून्स ये प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान सरकार ने बनाया है. 4 साल इससे बनाने में लगे हैं. अशोक गहलोत जी जो है हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने 1.5 से 2 हफ्ते पहले इसका उद्घाटन किया है. ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ अगर आप आते हैं तो 50 रुपये आपकी टिकट है. 20 रुपये से टिकट अंदर जाने के लिए है. 30 रुपये टिकट आपके गाइड की है. तो टोटल 50 रुपये है. और अगर आप 12th में पढ़ते हैं, 12th से कम है, स्कूल में है यानी कि, तो आप यहाँ आ सकते हैं और आपको अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा. तो जय के बारे में बताऊंगा आपको. वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ जय के बारे में, पर इतना ज़रूर सुना है कि यहाँ सैंड ड्यून्स है और बहुत ज़्यादा अलग अलग जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, डेजर्ट है. डेजर्ट के बीच बनाया, डेजर्ट टाइप को से जैसलमेर और बाड़मेर जैसा फील बना देने के लिए बनाया गया है. हमारे जयपुर में काफ़ी क्राउड भी आ रहे हैं यहाँ, भीड़ भी मैंने बहुत देखी है. और दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि 12 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगेंगे. जी हाँ, बाय द JDA. और 4 साल इसे लगे हैं यहाँ पर. जिस जगह पे मैं हूँ इस समय, आपको उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली इस जगह तक आ सकते हैं. शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती के आसपास ही, उस जगह के अंदर ही है ये. बहुत क्राउड आ रहा है और आज थर्सडे है, जबकि सैटरडे संडे नहीं है. ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं. टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इस जगह के बारे में क्या क्या विशेषताएँ हैं. तो चलिए मेरे साथ. So hi, my name is Monal and I'm a naturalist over here. Okay. Welcome to Kishan Bagh. Kishan Bagh is a very, very special park. It's unlike the other ornamental garden you see around the world. So what's special about this park is basically this park concerns about celebrating the native vegetation of Rajasthan. Okay, that is Roi. Roi basically is a Marwadi word which is called cotton, and Roi is being used as for the plants or the group of plants which are found natively in Thar area. So the plants over here basically the depiction of the vegetation found in the Thar area. So this is the basic path we will be following. Right now we are standing near by the ticket counter. This whole boardwalk will take you to the visitor center. Okay. From visitor center, a guide will pick you off, or else you can go by yourself as well. How many guides are there? Because I see a lot of people are going to the place. So. Okay, so majorly we are 2 over here. Okay. But we try to clump up the groups so that everyone can get informed about everything around. Okay. So next, you will after reaching the visitor center, you will head to the rock area. That is the depiction of how Aravali is having plants around. Okay. So it is a rocky place. So and a hardy place. So plants find really hard to thrive over there and to grow. So what a beauty have plants come up with is basically they will start growing in the cracks and the boulders of the granite. Where granite is formed, we have Aravallis, one of the primitive most hill range, and it is 1/3 made up of granite. That is why the depiction is of granite plants. It's a built. The government has made this, or it's natural? No, it's not natural. Okay. It's been built over here. Okay. Next we have the dhok patch. What dhok is? So all of the Aravalli range is being spreaded with this dhok plant. Okay. Dhok is a very special plant. It tries not to start its germination with the help of seeds, while it will start its germination like its root will penetrate inside the ground and will come up from a very
very different place. Okay, so this is how you'll find a jungle full of dhok pad, that is almost 1,000 plants of dhok, and they might be arising from a single tree. Okay, so that's the beauty of dhok. Next you will go to the rock made of sand area. So that tells about the sand story, sandstone, limestone, and also a very interesting fact that how granite is been finding in all over Rajasthan, because it's an igneous rock. Okay, so there exists a very interesting fact that before like almost 75 crore years back, there were existing volcanoes and they were active in this part in this Rajasthan. So majorly the Sindh part, India-Pakistan border area. And because of them, we have this high diversity of rocks. That is granite, which is being formed when the lava gets cooled inside the ground. Okay, and rhyolite, which is formed when the lava gets erupted. Also, we have welded tuff. The ash particle which comes out with the erupted lava, it basically form a set of rocks which are called welded tuffs. Okay. So after that, you will enter the fossil gallery, which will tell you how life has been evolved from water. Okay, and we have evidences which been collected from the Jaisalmer part, which consists of the rocks brought from Jaisalmer and Hapur village, and they tell you how the rocks are telling the story of how the life is arriving from the water, because it is having fossils which are basically mollusks. They are the shelled organisms which are found in the shallow water. Okay, so that's one evidence. Next you will head to the Royal Gallery, which is the highlight. So this will tell you all the information of what types of roi are found, and majorly there are 4 salient key featured species which are basically Senio, Hope, Heap and Bui. Senio is a flowering plant, Protolaria it is. Okay, yellow colored flower. In January it will be starting blooming. Next we have Heap, which is used for shading purposes. So when you arrive to the visitor center, notice the whole shade around there. It is all made up of Heap. Okay, next we have Bui, which is also called a desert cotton. Okay, people in Thar area utilize it for stuffing the blankets and pillows still. Okay, so it is a very nice thing to be utilized. Okay, and next the final one we have left with Fog. Okay, so they also call it Fogalia, and what speciality of Fog is basically it blooms with white and red colored flowers, and there is a local delicacy of Jaisalmer which is called as Fog Raita. They serve it, and it is a savory raita rich in antioxidants. Also, there is one harsh reality about Fog, because Fog's wood have high calorific value. It burns for a longer time. That is why people are blindfoldedly cutting it and exploiting the whole Fog jungle, and now we are left with very scanty patches of Fog only in Rajasthan. And then you will head towards the special habitat, that is the pond area, which depicts how rainwater gets collected in the pond in the Jaisalmer, and there is a different type of life form. Basically, you have tried to make this as a Jaisalmer. Yeah, so we have tried to make it geographical also. You have Thar desert and basically cumulative every single chota part of Rajasthan at a single place. So how we have to wander along? Very scientific. I'm a science student. Oh yeah, I am MSc Biotech. Yeah. So that is how, and then you will reach the Long House. From Long House, this is botany subject, right? Yeah, majorly botany. But geography is also there. See, but that's the beauty, you know. Every time we spot a butterfly, and every single butterfly is just a butterfly verse. So one time my niece came over here, and I spotted that there's a butterfly which we generally call monarch, na? Yellow colored butterfly, black colored marking and white spots. Very common. Very common. So it is called as plain tiger, and I spotted my niece that this is a plain tiger. Now every time my home that plain tiger is coming, she'll be spotting it. Mama, look at the tiger, and everyone will be gathered like there's a tiger or what, and she's making fool of everyone. So that is how the kids were getting interested about the stuff they know. It's a nice also for elder people also. It's a nice thing to know about the habitat and the Jaisalmer thing. Kids come to me now. I tell them a very small thing, that is in school we learn this play called दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. So if you can't appreciate what you have at your home, you can't appreciate what's there outside. Obviously. Okay, so that's one thing which we are basically flaunting over here, the beautiful vegetation. Promoting the desert, which is not there in Rajasthan, which is there in Thar. Yeah. So this is almost like 64-hectare area, but the walk is of 600 meters from the visitor center to Long House. Then you have a 1.5 kilometer walk in the habitat area, that is the dune part. You can go there, or either you can wait at rest at the. How much time it will take for us to reach the Long House? It will almost take 1 or 1.5 hours if you will be reading all the boards and getting all the information about it. Thank you. So we have fun. Thank you so much. तो बेसिकली ये आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और क्या है ये जगह, तो ये सैंड ड्यून्स बेसिकली जो जगह है किशनगढ़ शास्त्री नगर के पास है. मैं आपको
बताना चाहता हूँ इस जगह के बारे में कि ये इन्होंने एक तरह से जैसलमेर और थार, और जो थार पारकर है जो सिंध में अब जो रिसेंट पाकिस्तान है वहाँ पर जो जगह है थार पारकर, और सिंध जो स्टेट है, प्रांत है, वो उसमें जो रॉक्स होते हैं, जो सैंड्स होती हैं, जो डेजर्ट होता है, और वहाँ कौन से कैसे ट्रीज होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं, वो सब वगैरह, रोई वगैरह जो चीज़ें होती है, वो सब इन्होंने यहाँ पर एक जगह एकत्रित करा है, और बहुत ही ब्यूटीफुली करा है जितना मुझे मोनल ने भी बताया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अट्रैक्शन ऑफ जयपुर। तो अगर आप लोगों ने ये जगह नहीं देखी है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ इस जगह को आके एक बार चेकआउट करिए। ये देखिए सामने एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस जगह पे आप ज़रूर आइए। चीज़ें हैं यहाँ पे 6, साढ़े 6, 7 बजे शाम को, अप्रैल से अक्टूबर, और नवंबर से मार्च में 8 बजे सुबह से 5:30 बजे तक। ये बीच में जगह है, जैसे ऊपर आते हैं आप 100 मीटर पे, ये 50 मीटर पे जगह आती है। ये देखिए, ये यहाँ पर अलग अलग बर्ड्स हैं। ये सारी बर्ड्स यहाँ पर जो पक्षी दिख सकते हैं वो है। जयपुर के अंदर, सिटी के अंदर राजस्थान डेजर्ट इन्होंने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। ये सब यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं इस समय, और 550 मीटर के बाद, और ये देखिए क्या ब्यूटी है। आप ऊपर भी टॉयलेट है, और ये सब जो है ना, ये सब डेजर्ट्स के अंदर होते हैं। जो ये पेड़ है, मुझे बहुत पता नहीं इसके बारे में क्या कहते हैं, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे कि कौन से पेड़ है जो उसमें ये जो पौधे उग रहे हैं, ये इन्होंने जो डेजर्ट है उसके अंदर ऐसे ही लगभग पौधे होते हैं, तो ये बताने की इन्होंने कोशिश करी है। ये देखिए, ये ग्रेनाइट के चट्टान आगे कहाँ से आए, तो लिखा हुआ है कि ये चट्टान जो है सेंद्रा एक जगह है नियर ब्यावर, तो वहाँ से आए हैं। तो साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया है कैस्मोफाइट। ये कैक्टस के यहाँ पर जो डेजर्ट में, थार पारकर डेजर्ट जो है सिंध में, जैसलमेर समझ लीजिए आप, ये सिंध तो पूरा पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। चट्टानें दिख रही है ना आपको, ये पीछे मेरे ये धोक के पेड़ है, और ये देखिए पूरा ऐसा होता है। वैसे यहाँ पर थोड़े कम है, तो ये पीछे धोक के पेड़ है। फैमिली से आते तो भी बहुत अच्छी जगह है, फ्रेंड्स से आते तो भी बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया एक्सप्लोर करना इसे, और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या है यहाँ। ये देखिए पेड़ दिख रहे हैं आपको, धोक के पेड़ है। तो धोक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। प्योर फॉरेस्ट ऑफ धोक। धोक इज स्पेशली अडेप्टेड टू ग्रोइंग ऑन स्टीप, जो रॉकी स्टीप्स हैं, जो रॉकी स्लोप्स इन द अरावलीज that hold no water. Other trees cannot survive here, which is why dhok forms nearly pure water. No one seems to know exactly how dhok is able to do that. पत्थरों पे जो आ रहा है ना, ये पत्थरों पे जो आते हैं, ये निकल करके जो ये पेड़ हैं छोटे छोटे, वो है धोक। और ये कैसे आते हैं पत्थरों के ऊपर से बिना पानी के, बिना किसी चीज के, वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ धोक ही जानता है। यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नेचर है। तो क्या कह सकते हैं, ये अद्भुत प्रकृति, और हमें प्रकृति से प्रेम, मैं तो बहुत प्रेम। देखिए वहां देखिए आप, पेड़ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत अच्छी कुछ बर्ड्स हैं, बहुत अच्छी बर्ड्स हैं, पीछे मेरे बर्ड्स हैं। और आप प्लीज यहाँ आइए, अगर आप नहीं आए हो, 10-12 दिन ही हुए उससे। और वाकई काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है, काफ़ी हमारा सरकार काफ़ी कर रही है। जब भी गहलोत जी की सरकार आती है तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें। यहाँ रेत से बनी चट्टानें हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, इसलिए इस जगह को सैंड ड्यून्स कहा गया है। रेत से बने हुए टीले, तो और एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग शेप से बनता है। जो रेत के जो टीले होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जब वो इसके तले पर, सतह पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसके बाद ये पत्थर बन जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है यार।
जोधपुर के पास पाए जाते हैं। सुर सागर की जगह है, ये देखिए इनकी माइनिंग स्टोन है ये। और देखिए अगर आप थक जाते हैं, अपनी फैमिली से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये सर्दियों के मौसम में तो खैर बहुत ही अच्छा है, खाना ना आप साथ में लेके आइए। और अगर आप यहाँ थके हुए तो यहाँ देखिए बैठ सकते हैं, तो बैठ गया हूँ, आराम से आप बैठिए और शांति से आप आनंद, ऐसा लगेगा आपको जयपुर में है ही नहीं आप। पत्थर भी हमारे पास है, प्योर क्वार्ट्ज, पिघला हुआ मैग्मा का कई पदार्थों का मिश्रण है, जैसे लोहा, मैग्नीशियम एंड क्वार्ट्ज। एंड आफ्टर द वोल्केनो इट कम्स आउट। बेसिकली यू हैव टू कम हियर टू जस्ट सी बाय योर ओन आईज दैट हाउ द वोल्केनो से बाहर आते हैं पत्थर देख रहे हैं आप। जो रेड सैंडस्टोन वगैरह हमारे फोर्ट है, तो वहाँ पर फोर्ट जो रेस्टोरेंट है मालवीय नगर में, वो अगर आप देखोगे तो ऐसे ही सैंडस्टोन है वहाँ पर, तो ये सब वहीं से ऐसे आता है। राजस्थान स्टोन है ना ये शाइन है इसके अंदर, ऐसे ही डायमंड भी ऐसे ही निकलता है कर ये। राजस्थान के जो पत्थर हैं, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, डिफरेंट रॉक्स हैं जो माइंस में निकलते हैं। तो ये वो सब तरीके के पत्थर और जिस तरीके का डेजर्ट होता है, डेजर्ट बेसिकली बनाया है इसको, और बहुत अच्छी तरह इसको कोशिश की है एक ऐसा रूप देने की कि जिससे लोग समझ जाएं कि क्या है ये हमारा थार डेजर्ट क्या है और वहाँ किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। काफ़ी दूर है, लंबा चौड़ा है। डेजर्ट में जो ये पीछे दिख रही है मेरा आपको वाइट येलो, तो ये सब रोई है। ये देखिए वाइट वो है ना रोई, वाइट जो उग रहे हैं। तो मारवाड़ी भाषा में इसको ये जो झाड़ियाँ हैं, जो टिंगनी झाड़ियाँ, इसको मारवाड़ी भाषा में रोई कहते हैं। बहुत ही आप जो राजस्थान के स्पेशली जो जैसलमेर तरफ के हैं, जो गाँव साइड के, वो जानते होंगे कि ये रोई क्या होती है। तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट के नीचे लिख के बताइए मुझे यार आप कि हाँ हमें मालूम है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ की। देखिए मैंने ज़रूर है बहुत बार। तार जंगल में वैसे जो झाड़ होती है ना, वो इस तरह की झाड़ होती है, तो उसको रोई है। देखिए डिफरेंट रोई है। ये ज़्यादा येलो है, ये फिर ज़्यादा वाइट है, वो ग्रीन है, वो डार्क ग्रीन है। ये भी इनकी पत्तियां हैं जो रेगिस्तान में होती है। रेगिस्तान कैसा है, क्या है, थार डेजर्ट कैसा है, कैसे वहाँ पर पौधे होते हैं, कैसे पत्थर होते हैं, कैसी झाड़ है, रोई क्या है, और अलग अलग जो नाम से इनको बताया जाता है, जैसे कैसे कैक्टस है, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे राजस्थान सरकार ने, हमारे जेडीए ने एक जगह पे लाने की बहुत ही खूबसूरत कोशिश नहीं की है उन्होंने, एक्चुअली कर दिया है। टेक्निकली भी अच्छा है, फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं, रील्स बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह। तो आप भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ज़रूर यहाँ पर आइए। और आगे और लेके चलता हूँ मैं आपको। अब ये रेगिस्तान के पूल जिसे कहते हैं, पूल आ गए। देख रहे हैं पॉन्ड में जो पानी रेगिस्तान में जो आता है, निम्फोइड्स, क्रिस्टाटा। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो आपके लिए तो ये जगह क्या है, किसी मक्का से कम नहीं है। तो ये ऊपर का रास्ता है जो आप मेरे आगे देख सकते हैं। बेसिकली है जो दिखाया था मैंने आपको, बस लंबा चौड़ा है। तो ये लॉन्ग हाउस मचान है, इसके बाद भी आगे जाते हैं आप तो काफ़ी दूर है, किलोमीटर भी लंबी जगह है। लेकिन ये जगह पे मैं हूँ, ये भी देख सकते हैं। थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या पॉन्ड है यहाँ पे। वैसे ही बना रखा है जैसे कि
जितना दिखा सकता था मैं आपको दिखा दिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही नए नए अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को नोमैडिक अभिमन्यु को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन वहीं आपके नीचे होगा और कमेंट लिख के बताइए, लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। जयपुर में है तो इस जगह को आना बिल्कुल मत भूलिए आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।